हेलो स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 5 के जो कुछ न्यूमेरिकल बाकी रह गए थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। व्हाट इज इन दिस न्यूमेरिकल? इट इज गिवन दैट at temperature T1 27 degrees Celsius, temperature at T1 27 degrees Celsius, resistance is given 100 ohm, RT1, this is equal to 100 ohm, 100 ohm. So at which temperature, suppose this temperature is T2, at which temperature resistance of material will be 117 ohm. So you have to given initial temperature, resistance at temperature T1, you have to find out temperature T2 corresponding to which final resistance is 117 ohm, and alpha, value of alpha, temperature coefficient of resistance 1.70 into 10 to power minus 4, 1.70 into 10 to power minus 4 per degree Celsius. This is mathematical condition of this numerical. Clear? So what is formula? Here we take RT equal R naught 1 plus alpha T, but this is final resistance, so we can write this formula according to our convenience. RT2, this will be R naught initial RT1, this will be 1 plus alpha, this is temperature difference, so we can write initial temperature, final temperature T2 and initial temperature T1, so this will be temperature difference. Clear? Now you can put value of these parameters in this equation and we can find out value of T2. So we write RT2 117 equal RT1 100 1 plus alpha, value of alpha 1.70 into 10 to power minus 4. What is T2? We have to find out T2, and T1 27 degree Celsius. Then we can write as 117 100 plus 100 100 multiply by 1.70 17 into 10 to power minus 4 into T2 minus 27 degree Celsius, 27 degree. Clear? Now we can write as 117 minus 100, this is equal to 17 into 10 to power minus 4 and T2 minus 27 degree. This will be 17 equal 17 10 to power minus 4 T2 minus 27 degree. Now 17 is cancelled out, so what will be result? 10 to power minus 4 T2, so we can write as here again we see that 100 multiply by 117, so this will be 17 and
10 to power minus 4. So 1 equal 1 upon 10 to power 4. What is value of alpha? Alpha value of alpha is given that 1.70 into 10 to power इतनी. ठीक है. So result will be 10 to power minus 4, 10 to power 4 t2 minus t1 27. इधर शिफ्ट कर दें इसको तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 to power 4 इक्वल t2 minus 27. So we can write there will be 100 को मल्टीप्लाई किया कितने से 100 को 1 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई किया 1.70 तो ये 170 आएगा, ये 170 आएगा. देन दिस विल बी 10 टू पावर माइनस 3. ठीक है. और ये भी 10 टू पावर माइनस 3. दिस विल बी 10 टू पावर 3. दिस विल बी 10 टू पावर 3. So this is 1000 equal T2 minus 27 और value of T2 equal 1000 plus 27. इसको इधर ले आएंगे तो T2 will be 1027 degree Celsius. This is final answer. तो एक बार आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे. 100 को मल्टीप्लाई किया 1 से 100 को 1.70 से मल्टीप्लाई किया 170. ठीक है. और एक जीरो को यहाँ एडजस्ट कर दिया 10 टू पावर माइनस 3. 17 जो है इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 17 बनेगा कैंसिल हो जाएगा. 10 टू पावर माइनस 3 को नीचे लेके जाएंगे 1000 हो जाएगा. इसको शिफ्ट कर देंगे इधर तो फिर ये आपके पास में T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो यू कैन नोट इट. ये तुम्हारा न्यूमेरिकल हो गया 5th. Now we take next numerical problem which is 8th. What is the next numerical problem which is 8? It is given that at which temperature initial जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और रेजिस्टेंस जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं R0. तो फिर इनिशियल टेम्परेचर T इक्वल T1 इक्वल 0. क्लियर. नाउ इनिशियल रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल R0 एंड फाइनल टेम्परेचर this is equal T2. We can put T. We have to find out corresponding to which resistance जो है वो हमारे पास में है RT इक्वल या RT2 इक्वल 2 times of initial resistance. So what will be the value of temperature corresponding to which resistance will be double of its initial value. तो एक बार फिर से सुन लो. ये पहले वाला टेम्परेचर है जिस पर हमने रेजिस्टेंस कितना मान लिया R0. सेकंड फाइनल टेम्परेचर T2T क्या होगा जिसके ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का वो इसकी कंपैरिजन में डबल हो जाए T टेम्परेचर के ऊपर. तो T हमें जो है फाइंड आउट करना है. तो फार्मूला क्या था? RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फा T. ठीक है. ये हमारे पास फार्मूला है. तो
तो आर टी इक्वल, आर टी की वैल्यू कितनी रखी है, 2 टाइम्स ऑफ आर नोट, सो वी कैन राइट 2 आर नोट इक्वल आर नोट 1 प्लस, और अल्फा की वैल्यू ये भी दे रखी है, ये वैल्यू है आपके पास में 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर टी के लिए आर नोट इज कैंसिल आउट, सो 2 इक्वल 1 प्लस 4 अपॉन में 1000, क्योंकि 10⁻³ के नीचे जाएगा तो 1000 इंटू में टी, तो यहां से 2 में से 1 गया 1 इक्वल, ये कैंसिल कर दूं मैं, ये 4 और ये 250, तो फिर ये कितना रह गया, 2 में से 1 गया 1, तो वो टी अपॉन में 250, तो हमें चाहिए टी की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, टी इक्वल 250 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यदि हम कंडक्टर का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें तो फिर इसका रेजिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा, जो बाद में जो रेजिस्टेंस आएगा। तो इस तरीके से किसने ये पूछा था किस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा, किस टेम्परेचर पर, तो इस टेम्परेचर के टी के ऊपर कितना, 250 डिग्री सेल्सियस पर इसका ये डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, तो वो क्या है देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 9। तो 9 में क्या गिवन है, 9 में गिवन है कि एक बैटरी है किसी कार की जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट दे रखा है। तो ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी दिस इज इक्वल टू 12 वोल्ट। नाउ internal resistance of this battery is 0.4 ohm. Internal resistance तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 0.4 ओम। ठीक, व्हाट विल बी मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू बैटरी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम ये देखें बाय यूजिंग ओम्स ना, फार्मूला तो हमारे पास में I इक्वल V अपॉन R होता है, बट दिस इज EMF, so we can take E, and here we can take internal resistance which is equal to small r, so formula will be E upon R, क्या आ जाएगा, I maximum इक्वल E अपॉन R, वैल्यू ऑफ E 12 है अपॉन 0.4, डेसिमल रिमूव किया 10 आ गया, 4 3 जा 12, 3 10 जा 30, करंट मेजर्ड इन एम्पियर, सो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग करंट विल बी 30 एम्पियर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि सर्किट में एक रेजिस्टेंस और होता एक्सटर्नल, तो उस केस में आपके पास में कैपिटल R रेजिस्टेंस और जुड़ जाता, फिर ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाता। लेकिन अब केवल जो है ये तो जीरो कर रखा है, इसमें तो दे नहीं रखा कि कोई रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, सिर्फ वो यही कह रहा है कि उसकी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो फिर उस केस में तो हमारे पास में फार्मूला सिर्फ ऐसे ही रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 10। तो 10 में क्या है देखिए,
10 में है कि एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 4.2 ओम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल R इक्वल 4.2 ओम। और क्या गिवन है? गिवन है कि ये जो है वाटर में डिप की गई है और इसमें 2 एम्पियर करंट फॉर 10 मिनट्स फ्लो होती है। ये हीटर की तरह काम कर रही है। तो फ्लोइंग करंट, वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट इज I इक्वल 2 एम्पियर। टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, तो टाइम दे रखी है T इक्वल 10 मिनट। So you have to find out produced heat H or which will be in calorie, वो क्या होगी कैलोरी में। तो हीट चाहिए कैलोरी में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है, उसमें करंट इतनी फ्लो हो रही है, 10 मिनट के लिए फ्लो करवाई जाती है, तो प्रोड्यूस्ड हीट इन कैलोरी क्या होगी। बट इन एसआई सिस्टम यू कैन राइट 600 सेकेंड। तो बाय यूजिंग जूल्स लॉ सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाय यूजिंग जूल्स लॉ produced heat H इक्वल I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो H इक्वल I 2 स्क्वायर R 4.2 टाइम 600 seconds, but this will be in joule. These parameters are in SI unit or SI unit of energy which is joule. So this will be in joule. But आपको कैलोरी में फाइंड आउट करना है, तो 1 कैलोरी जो होती है वो 4.2 जूल की इक्वल होती है। ये भी आपको गिवन है। तो गिवन है क्या, 1 कैलोरी इक्वल 4.2 जूल। तो फिर इसमें कितने कैलोरी होगी, तो इसको हमें जूल जो है, एक जूल में कितनी होगी, 1/4.2, तो इतने जूल में कितनी होगी। तो फिर इसके लिए आपके पास में 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, किस पूरे को। तो फिर इसमें इतनी जूल है, 4.2 जूल की एक कैलोरी है, तो इतने जूल में कितने कैलोरी होंगी, तो किससे डिवाइड करते हैं इसको, 4.2 से। तो फिर H इक्वल 4 into 4.2 into 600 divide 4.2, this will be in calorie, cancel out। H equal 2400 कैलोरी। इसका मतलब उस रेजिस्टेंस से इतनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, ये हम जूल्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 10। नाउ वी टेक लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11। second last numerical problem, this is 11। तो what is given, दिया है यहां पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसकी लेंथ जो है L है। तो there is a cylindrical tube, length of cylindrical tube, this is equal to L, clear। Suppose this is a cylindrical tube,
but there is, this is axis, inner radius is A and outer radius is B. Inner radius and outer radius, ठीक है। तो फिर inner radius this is equal to A and outer radius this is equal to B. resistivity this is equal to rho, ठीक। So what will be resistance of this cylindrical tube? तो R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर यहां हम देखें सॉल्यूशन, R इक्वल रो L अपॉन में A, रो L गिवन but area is not given. So what is area of this part? So area of this part will be, this is circular, so for effective area A इक्वल, बाहर की रेडियस B है, तो फिर जो एरिया बना बाहर वाली इस पूरे का कंप्लीट का वो पाई बी स्क्वायर हो गया, और इनर जो है उसका रेडियस कितना है A, तो फिर इनर वाले का रेडियस, सर्कुलर पार्ट का रेडियस एरिया क्या बन गया, पाई ए स्क्वायर। तो फिर जितना मैंने कलर्ड किया है वो कितना बन गया, माइनस। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव एरिया के ए कैसे निकाल सकते हैं, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, विच इज कैन बी रिटन एज पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जो कलर्ड एरिया है वो आपको इफेक्टिव एरिया के तौर पे चाहिए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज सेकंड। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब रो इक्वल L अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास में जो है वो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आ गई। तो यहाँ ये ध्यान देनी है कि सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जिसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है उसका एरिया क्या होगा। तो आउटर वाले एरिया में से हम इनर वाला एरिया घटा देंगे तो फिर शेडेड जो रीजन है उसका जो है एरिया आपके पास आ जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। नाउ वी टेक लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो व्हाट इज लास्ट न्यूमेरिकल? देखिए, देयर इज 100 watt बल्ब, 400 watt बल्ब। तो बल्ब क्वेश्चन नंबर 12 है। कितने बल्ब हैं 100 वाट के? वो 4 हैं। ठीक है, बल्ब 100 वाट जिनकी नंबर है 4, और पर डे कितने आवर ग्लो करते हैं? 4 आवर। और एक टाइम पीरियड जिसके लिए ये 400 वाट का बल्ब पर डे 4 आवर, 4 बल्ब पर डे 4 आवर और 30 डेज के लिए ग्लो होते हैं। तो इन 1 month there will be 30 days. Now second, बल्ब भी है बट 60 वाट बल्ब, ये भी आपके पास में, इनकी नंबर कितनी है? इनकी नंबर भी 4 है, लेकिन ये पर डे 6 आवर, पर डे 6 आवर जो है ग्लो होते हैं, और ये भी 30 डेज के टाइम पीरियड के लिए ग्लो कर पाएंगे। और अब हम ले रहे हैं फैन। फैन हमारे पास में कितने हैं? फैन है 2 जो 60 वाट के हैं। सॉरी, बल्ब जो दे रखे हैं आपको वो 40 वाट के दे रखे हैं, 40 वाट। और फैन है वो 60 वाट के हैं, और कितने हैं उनकी नंबर 2, और वो पर डे
कितने आवर चलते हैं, कितने आवर ऑपरेट होते हैं, वो होते हैं जो है 8 आवर्स। तो ये भी 30 डे टाइम पीरियड के लिए ऑपरेट होते हैं। सो these instruments operate in a month, then what will be total amount of watt hour? So there will be 4 3 are 12, 12 4 are 48, 1230 watt hour। तो watt hour एनर्जी, क्यों, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल वर्क और एनर्जी। इन दिस सिस्टम कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 4 72, 72 मल्टीप्लाई बाई 4 288, 288 0 डबल 00, ये भी वाट आवर। 4 40 वाट बल्ब्स, 4 फैन, देयर विल बी कितने हो, 8 2 16, 16 3 48, और 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन दिस विल बी सेम 28800 वाट आवर। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, दिस विल बी, ऐड करें 0 0 8 8 16 5 एंड कितने हो जाएंगे कितने होंगे, 0 0 0, नेक्स्ट 8 8 16 16, 8 3 24 24, और ये कितने आ जाएंगे आपके पास में 25, और 2 2 4 4 4 8 8 2 10। So there will be 1,56,100 ये आपके पास में वाट आवर, 1,05,600 watt hour, but you can convert it in kilowatt hour, so we can write as 1,05600 divided by 1000, this will be converted in kWh, so this is 105.6 किलोवाट आवर। जैसे ही हम यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे, के लगाएंगे, ये आ जाएगा, तो दिस विल बी 105.6 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर? नाउ it is given that cost of a single unit is 5 rupees, then what will be amount of for these units? तो फिर यहां आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ रुपीज, टोटल अमाउंट इन रुपीज इक्वल 105.6 यूनिट इक्वल 5 रुपए मल्टीप्लाई बाई 5 रुपीज 5 per unit, so unit will be cancel, this will be multiply करेंगे तो 528 रुपीज 528, तो इतना जो है बिल आपका इसमें आएगा। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर ये चैप्टर इसी के साथ जो है वो फिनिश हो गया है। इसके बाकी के न्यूमेरिकल्स जो है आप निकालते रहिए, और अब हम चैप्टर जो है नेक्स्ट शुरू करेंगे 6th वाला। तो फिर इसके जितने भी टिपिकल जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको जो है यहाँ पर समझा दी है, और आज का लेक्चर बस यहीं तक है। थैंक यू।